ہوتا ہے، پھر جوانی سے بڑھاپے میں جاتا ہے، بڑھاپے میں جا کر کے پھر اگر اللہ کی طرف سے ان کو حکم آ گیا وہ انتقال ہو جاتا ہے۔ ہمارا دولت، ہمارا زمین جگہ کچھ بھی ہمارا ساتھ نہیں جائے گا، بس ہمارا اعمال جائے گا۔ ہم جو نیکی کریں گے، جو دنیا میں کریں گے، تو وہی ہمارا ساتھ جائے گا۔ میرے پیارے اور بہنوں، ہم اپنی وقت کی قدر کریں، اپنے آپ کو پردہ کریں، برے خیالات، برے چیزوں سے بچے، بلکہ کوئی برائی کی طرف آمادہ ہو رہی ہے، برے راستے کی طرف چل رہی ہے، تو اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ ہم کیسے کریں؟ اگر ہمارا ایمان مضبوط رہے گا تو پھر ہم کہیں گے تو ہماری بات اثر کر جائے گی۔ اس لیے میری پیاری ماں بہنوں، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے۔ جیسے 3 وقت کا کھانا لازم ہے، ایسی ہمارے اوپر نماز بھی لازم ہے۔ یہ نہیں ہم ناشتہ کھاتے ہیں، دوپہر میں کھاتے ہیں، رات میں کھاتے ہیں، جیسے کھانا کا ٹائم فکس کر رکھتے ہیں، ایسے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہونا چاہیے۔ بس اذان ہوتی ہے، ہم اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں، اپنے کام کرنے لگتے ہیں، تو یہ سب چھوڑ کر کے آدھا گھنٹہ کا تو نہیں ہوتا ہے، 1 گھنٹہ کا تو نہیں ہوتا ہے، بس 10 منٹ، 20 منٹ، 15 منٹ، ہم اتنا ٹائم نہیں دے سکتے ہیں نماز کے لیے، دے سکتے ہیں نا؟ تو پھر ہمارے پاس سوچتے ہیں میں نماز جب تک پڑھوں تو نماز پڑھنے چھوڑ کر کے اس وقت میں برتن جاری ہوں، جھاڑو لگا لوں، یہ سب کام چھوڑ کر کے آگے لپٹیے، آگے جھپٹیے، جو ہمارا فائدہ ہونے والا ہے اور پھر جو ہمیں کام دینے والا ہے، جس میں ہمیں دنیا میں بھی صحیح رہ سکتی ہے اور آخرت میں بھی صحیح رہ سکتی ہے۔ جی جو بھی کہتے ہیں، اگر کوئی بھی سود لیتا ہے تو سود کھاتا ہے تو ان کے جسم میں جو خون ہوتے ہیں وہ حرام کا بن جاتا ہے۔ سود بیاج کھانے والوں 36 مرتبہ زنا کرنے کی برابر ان کو گناہ ملتا ہے، 36 مرتبہ گناہ کرنے کی برابر ان کو کا گناہ ملتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم ان کو عام کریں یا ان کو بند کریں؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس پریشانی ہے تو ہم اللہ کی طرف جائیں، اللہ سے مانگے، اللہ سے کہیں، نہ کسی غیر محرم مرد کے پاس جا کر کے وہاں لیتے ہیں اور اپنی محل بناتے ہیں، گھر سنوارتے ہیں، یہ ہمارا کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم اگر ان چیزوں میں آگے بڑھے ہوئے ہیں تو ہمیں تو توبہ کیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے اور ان چیزوں سے ہمیں بچا لیجیے۔ اگر ہم سود کھاتے ہیں تو ہمارے اوپر سانپ مسلط کیے جائیں گے۔ سود کھانے والوں کے لیے جیسے سانپ تو ان کا عجوب چلنے لگے گا، طرح طرح کی تکلیفیں ہوگی، طرح طرح کی پریشانی ہوگی، تو کیا ہم یہ پریشانی کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک واقعہ یاد آ گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ایک منظر دیکھا جو کچھ عورتوں کو آگ کی کینچی سے جلدیں کاٹی جا رہی تھی، یعنی جلد یعنی چمڑا کاٹی جا رہی تھی۔ اگر کسی کا آپریشن ہوتا ہے کہیں جگہ یا کسی مقام پہ ہوتا ہے، اگر ان کو بے ہوش نہ کرے تو وہ کتنا تڑپتا رہے گا، کتنا بے چین ہوگا۔ جب ان کو
और फिर डॉक्टर उनको बेहोश करता है, फिर बड़ी नजाकत यानी हल्के हल्के अंदाज में वो रोशन करता है। जब इंसान को होश आता है, होश में रहता है, वो देख कर कितना बेचैन होता है, कितना बेकरार होता है। अगर उन्हें होश में किया जाए तो वो बेचैन होगा ही। जो आपकी कैंची से चमड़े को काट रहे हैं, जिब्राइल इस्लाम ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन औरत है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये वो औरत है जो दुनिया में बनसवर करके निकलती थी और दूसरे को अपनी तरफ माइल करती थी। ये वो औरत है जिनको आप कैंची से जिन्ने काटे जा रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो ये वो औरत है जो बनसवर करके निकलती थी, इसलिए इसको इस अज़ाब में मुब्तला कर दिया गया। मेरे प्यारे मालूमों, हमें चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को किस तरह का तालीम दें। कॉलेज में, स्कूलों में हर जगह भेजते हैं और लिबास को क्या कर देते हैं, चुस्त कर देते हैं। यानी चुस्त लिबास पहनना, बदन की नुमाइश होना, बदन का जाहिर होना, ये क्या है? ये इससे अच्छा अगर कपड़ा है तो बदन में कैसे पहनेंगे? ढीला ढाला उतना भी इस तरह करके पहने ताकि हमारी बदन की नुमाइश न हो। हम अपने घर के अंदर सही माहौल बनाए, सही तरबियत दे, सही लिबास पहनाए ताकि हमें भी आराम होगी और उनको भी आराम होगी। ताकि हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं, हम औरत को क्या चाहिए? नरमी के साथ चले, हमारे अंदर नरमी पैदा होनी चाहिए। जमीन पे चलते हैं तो कैसे चलते हैं? अकड़ अकड़ कर चलते हैं, इतरा कर चलते हैं, सीने तान कर चलते हैं। ऐसे हमें बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। अकड़ कर चलने वालों को, तकब्बुर करने वालों को, घमंड करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, अल्लाह को नहीं जो जिस्म पसंद है, नहीं किसी का सूरत पसंद है, बल्कि तकवा यानी दिल, अल्लाह को दिल पसंद है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने अंदर नरमी को पैदा करना चाहिए। हमें किस तरह चलेंगे, किस तरह चले? हम तो मिट्टी से बने हैं ना, फिरौन नहीं रहे। गैर फिरौन बनकर ना चल, यानी फिरौन बनकर ना चल। तू क्या है? इंसान है, तू मिट्टी से बना है। तो हम सब जिन से बने हुए हैं, मिट्टी से बने हुए गुना। तो हमें किस तरह रहना चाहिए, किस तरह कदर करनी चाहिए, किस तरह चलना चाहिए? मेरी प्यारी माँ, हम तो आज हर कुछ को फैशन समझने लगे, हर कुछ में आगे बढ़ गए हैं। उठाओ ये लेकर के, वो लेकर के हम तो आगे बढ़ गए हैं। हम ये सोचते हैं हमारा औकात तो बहुत बड़ा है, हम तो बहुत बड़े हैं। जबकि मुसलमान जैसे अपने पहनावा और हवा को लाजिम पकड़ता है, तो इसी तरह नमाज क्या है? आंखों की ठंडक है, आंखों की ठंडक नमाज है। अगर हम दिन में 5 मरतबा गुस्ल करेंगे, यानी दिन में 5 मरतबा गुस्ल करेंगे, तो हमारा बदन पर मैल कुचैल में से कुछ भी रहेगा नहीं ना रहेगा। तो मिसाल दिया गया, अगर किसी के दरवाजे पर घर जा रही हो, अगर वो उसमें 5 मरतबा गुस्ल करता हो तो क्या उसके बदन पर मैल कुचैल में से कुछ भी बांधी रहेगा नहीं ना रहेगा। इसी तरह 5 नमाज को अदा
जैसे नहाने से हमारा बदन साफ हो जाता है, ऐसे नमाज पढ़ने से भी अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को साफ कर देता है। तो मेरी प्यारी माँ बहनों, आज तो हम नमाज पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, ज़ोहर में पढ़े तो असर में नहीं पढ़ते हैं, असर में पढ़े तो मगरिब में नहीं पढ़ते हैं, मगरिब में पढ़ते हैं तो इशा में छोड़ देते हैं, इशा में पढ़ते हैं, फजर में सोए रह जाते हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, हमें क्या करनी चाहिए? इन महीनों का, इस मुबारक महीनों का सही से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। जैसे इनके सौम का लफ्ज भी आया है और सियाम का लफ्ज भी आया है। जैसे सौम माँ वाले सियामा यानी उन पर रोजा फर्ज किया गया है। तो सौम और सियाम का मतलब ये है, सौम कहते हैं खाना और पीना, और सियाम कहते हैं आंखों का देखना, जुबान का बोलना, कान का सुनना, दिल की कैफियत को ठीक करना। आवाज बंद है तो जोड़ी करके क्या मेरे अच्छी गाड़ी है, तुम जंगल कोई आए रहने के बारे में बता रही हूँ। अच्छा, अभी बाद में आपके बयान के बाद बयान के दौरान कोई भी बच्ची वाला हो या बच्ची हो खलल न डाले, डिस्टर्ब हो जाता है, मुनासिब नहीं है। कितना अच्छा जानदार बयान हो रहा था, बहुत अच्छी बात हो रही थी। आइंदा ख्याल करेंगे कि बयान के दौरान कोई टोके नहीं और शोर शराबा न करें, आप लोग सुकून के साथ सुने। अगर आप ही लोगों को बोलना है तो फिर बोलिए, 2 मिनट का वक्त दिया जाता है, हम लोग चुप रहते हैं, आप बोल लीजिए पहले। तो क्या कह रहे थे मेरी प्यारी माँ बहनों, जो सौम और सियाम यानी 2 लफ्ज हैं। सौम माने हैं खाना और पीना, और सियाम के माने हैं आंखों का देखना, जुबान का बोलना, कान का सुनना, दिमाग का सोचना। सर से लेकर पैर तक की हरकत करने वाली चीजों को सियाम कहते हैं। तो अल्लाह ने हम पर सौम फर्ज नहीं किए हैं, बल्कि सियाम फर्ज किए हैं। अल्लाह हमसे ये चाहता है कि तुम्हारा पेट का रोजा हो, यानी मदरसा की छोटी बच्ची आ जाए, मदरसा की बच्ची को भेज दीजिए इधर जहाँ पे मैं यानी खाए भी तो क्या खाए, हलाल खाए। तेरा हाथ का रोजा हो, यानी गलत चीज पर हाथ ना उठा, गलत चीजों पर हाथ ना लगा, तू गलत साइड ना कर, ताकि हम अगर उठाएं तो ये हाथ भी हमारा उस दिन गवाह देने लगेंगे। हमारा पैर रोजा है, यानी जितने भी सर से लेकर पैर तक की जो आज़ा है हम रोजा रखते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? गलत चीजों को नहीं उठाना चाहिए, गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गलत रास्तों पर नहीं चलना चाहिए। जैसे ला तमशा फिल अर्ज़ि मरहा, गलत महफिल में ना जा, गलत मजालिस में ना जा, जमीन पर चल, नरमी के साथ चल, अकड़ कर ना चल, यानी ऐसे अकड़ कर ना चलो जिनसे क्या कर जमीन को फाड़ दोगे, क्या इतना अकड़ करके चलते हो। तो इसलिए मेरी प्यारी माँ बहनों,
चाहिए कि इस महीने की कद्र करे, नमाज को छोड़े, नमाज को ना छोड़े, तरावी पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, ज्यादा से ज्यादा हम अपने टाइम को किसमें गुजारे, इबादत करने में गुजारे, ना कि खाने पीने में इतना टाइम हम नहीं गुजारेंगे, ज्यादा हम इबादत करेंगे, तस्बीहात की जिक्र करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, इन चीजों में अपना वक्त को गुजारेंगे, सेवा करेंगे। आज हमारे घर में बहू आ जाती है, बहू आती है तो सास बहू में दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो दूसरे के पास जाकर के बैठ करके हमारी बहू इस तरह है, काम नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है, उनके बारे में हम गिबत करने लगते हैं। जैसे एक माँ अपनी बेटी को समझती है ये मेरी बेटी है, बेटी का खिलाफ कहीं नहीं करेगी, बल्कि बहू के बारे में ये सब क्या है मेरी प्यारी माँ, ये सब गलत है। जैसे अपनी बेटी को हम समझते हैं इसी तरह अपनी बहू को भी समझे। अब अगर बहू ये ना सोचे जो हमारी सास हमें अच्छा समझ रही है हम उनके बुरा शुरू करें, बल्कि बहू को भी चाहिए जैसे हम माँ की खिदमत करते हैं इसी तरह हमें सास की खिदमत करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब मैं इसके बाद